السلام علیکم، میرے چینل پر ثاقب رضا مصطفی کے بیانات موجود ہیں۔ مزید بیانات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کریں آپ، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ یہ اگر وعدہ کرتے ہو چلے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر دیا، آگے حضرت کی خدمت میں مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آگے فیض کرو، لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے میں بھی بیٹھا۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے گئے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی، دعا کروائی حضور سے، تو کیا جواب؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی کروائی۔ کہتے میں جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ماں حاجت ہو؟ کہا آپ حضرت اللہ ناکا والے خوب میں کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے میں جواب کیا دیتا؟ جو کام تھا وہ تو میں نہیں ہو گیا۔ اللہ کہتے محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ اب آگے ہماری بات سنیے۔ محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتیٰ تک ہو جائے نہیں تو خود بھی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ بٹنا چاہے آقا پہ تو وہ بندہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک ساتھی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آئی، آنگن میں بیڑے میں کبھی نائے جاتی ہے کبھی کھوائے جاتی ہے۔ پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹ ہو۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے طرف کو بات کرتی ہے، یہ رشتہ ماں کا ہے، سو نبی کا رشتہ تو یہی پڑا دوں لو تک بانو شیخت ان کی ریچ لیا آتے ہو لبجف والا ماں۔ کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا دے چوبے تو اس کی تکلیف مجھے ہو، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے مبتل آئے درد وہ وہی مزرد ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن بھی امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص النبی میں لکھا۔ قاتلوں نے پکڑ کے آگ میں نے حضرت عمار بن یاسر رو پڑے، قاتل سمجھے آگ سے ڈن گئے، کہا نکال دے، منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تو غلط سبب، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے۔ پسی جو تاپ میں بل بل تو لگی یوں کہنے، کرے کا قتل گن کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے غمِ آئے۔ تھوڑی سی تشریح کر، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب کی ضرور تیار کرے، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جان لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے چھوڑ، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہو۔ میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے، مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور وہ بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے۔ تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تمہیں یاد سامنے لو، پھنسی جو تاج میں پھول پھول تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے تبھی اس کی وجہ۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ بنتا مٹنا جائے آپ کا پہ تو وہ فنتا، بے خبر وہ جو بولا ہم سے وہ آگ کیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، قافلوں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا دارو کونی برتا وسلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے۔ تو آگ نے حضرت عمار بن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا، اور وہ بعد میں شہید ہوئے۔ تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ، تو کہا میرے وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا، لکانا خیر اللہم، تو یہ کے لیے بہتر۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، کیونکہ یہ آداب جان سے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے، اللہ نے معاف کر۔ تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تم میرے محبوب کو آواز نہ کر۔ اور صحابہ کا پھر مزاج کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے نستقی دیتے،
अगर हालात इंतहाई एमरजेंसी होते तो फिर वो दस्तक दे लेते, लेकिन उसका एक तरीका जिसको इमाम बुखारी ने बयान किया, कानत तो कहो अबवाबुन नबी बिल अज़ाफिर, फिर सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर की दहलीज पे दस्तक दिया कर। उंगलियों के पोरों के साथ दस्तक देने का मतलब क्या, इसकी तशरीह मुल्ला अली कारी करते हैं। लफ्ज इतने खूबसूरत हैं, अगर मैं तर्जुमा ना भी करूंगा तो आप लज्जत जरूर लेंगे। बाज लफ्ज इतने खूबसूरत होते हैं ना कि इंसान झूम उठता है। इकबाल के देखिए, नौजवाना चूजना मशगूल तन अज हया बेगाना पीराने कौन, साख्ता पर दागता दिल बागता अब रुआ मिसले दो तेरे आगता। अब लफ्ज इतने खूबसूरत है। अब देखिए मुल्ला अली कारी लिखते हैं इसकी तशरीह के अंदर, हज़रात सहाबा हुजूर के दरवाजे को जो दस्तक नहीं देते थे, उंगलियों से और पांव से दस्तक देते थे, इसका क्या मतलब, कहते हैं ए ज़रबन खफीफन व दक्कन लतीफन ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफन, ये सब कुछ हुजूर की इज्जत अफजाई के लिए। सारद सिद्दीकी ने कहा था, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। ये उसका तखय्युल है, उसका तसव्वुर है। उसने अमलन दरे हबीब पे यूं दस्तक दी नहीं होगी, सहाबा ने दे के भी दिखा। ये है हुजूर के आदाब की रियायत, जिसको मलहूज रखने का हमें हुक्म दिया गया। बल्कि अल्लाह फरमाया, ए ईमान वालों, मेरे नबी से जब सरगोशी करना चाहो तो यूं ही ना आ जाओ, पहले घर जाओ, सदका लो, फकीर ढूंढो, खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कितनी ऊंची बारगाह में आए। इस आयत करीमा का नज़ूल हुआ, चंद सिर जो खैरात करके हज़रत अली ने हुजूर से 10 मसले पूछे, फौरन आयत मंसूख है, हुक्म खत्म हो गया, आयत कुरान में बाकी है। क्यों खत्म कर दिया गया, सहाबा गरीब है, उनकी गुर्बत का लिहाज रखा है कि फिर तो मेरे हुजूर से अब ये मसला पूछ सकेंगे, ज्यादा गरीब से अभी तो मसला पूछ नहीं सकेंगे। अच्छा, अल्लाह को आयत करीमा के नज़ूल के बाद पता चला सहाबा गरीब है, पहले ही पता था? अगर पहले ही पता तो फिर आयत नाज़िल क्यों हुई? कहा नाज़िल इसलिए की कि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे महबूब का दर्द क्या है। ये जो उठा रहे हैं हुक्म को, ये तुम्हारी सहूलत के लिए उठा रहे हैं, वरना मेरे नबी के अदब और मेरे नबी के तातीर का आदम यही है कि तुम पहले घर जाओ, सदका लो, खैरात करो और फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। जिस तरह नमाज से पहले वुजू किया जाता है, मेरे महबूब से मिलने से पहले खैरात किया कर। ये इतनी ऊंची बारगाह, जब इतनी रफीउल मर्तबत बारगाह है कि आवाज को भी काबिल रख सकते, इतनी ऊंची बारगाह है कि सदका दे के हुजूर की चौखट पे आ जाओ, इतनी रफीउल मर्तबत बारगाह है कि हुजूर से किसी अंदाज में तकद्दुम भी इख्तियार नहीं करना है, लहजा भी बुलंद नहीं होना है। तो फिर एक मोमिन कैसे गवारा कर सकता है कि आका जी तो ही ये बदनसीब दिन इस वक्त को हम देख लें। सच्ची बात यह है कि 14 सदियों में उम्मत मुस्लिमा पर इतने बदनसीब दिन कभी नहीं आए। हमने रुकते हुए बगदाद की कहानियां भी पढ़ी, हमने लड़ाते को उजड़ते हुए भी देखा, हमने इंसानों के फर्क छोड़ते हुए भी देखे, हमने तजलाती की कदावत पर और उसकी बेहरों पर लाशों को तैरते हुए भी देखा है। हमने तर्ज की ये सारी कहानी बगदाद की उस भयानक घड़ियों को कौन भूल सकता है जब इंसानों के सरों की खोपड़ियों का मीनार का भी ये मुगलों ने जुल्म किया, जब हत्या के वो बदनसीब दिन भी हमने देखी। और अब भी जो दिन हमारे ऊपर गुजर रहे, ये भी खुश गवार दिन नहीं। काबल, कनदार, किला जंगी, दश्त गैना, शोरा बोरा, तकरीर, मूसल, बगदाद, अल-कुद्स, कश्मीर, रका, आज़रबाईजान, अराकान, जहां जहां देखने आप उम्मत मुस्लिमा सत इस तरह गवाटा नामोवे के जेल खानों की सलाखत के पीछे हमारे कैद, शतीला आबरा के कैंपों के अंदर हमारे कैदी तरफ रहे, अबू गरैब की जेल में हमारे लोग तरफ रहे, आतिया सिद्दीकी हमारी बेटी है और गैरों के नरखे में। इस पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस इस तरह में ये कनवी कहानी हमारी रतियां काटी और शहादत से जब काज करके जब खून बह गया तो फिक्रों में फिक्रोल भरा, जिन नाशों को आग लगा दी और जब वो नाश के तड़पते थे, रच से बिस्मिल के तमाशे करते थे तो मेरे मुंडे टुड्डे मारते थे और साथ छह कहे लगाते। ये कनवी कहानी है कि शबा खान जाने वाले कंटेनरों के अंदर तालिबान भांसिए थे और उन्हें एक बोतल पानी की बिना नहीं गई, और जब प्यास की शिद्दत से वो तड़पते थे एक दूसरे का पसीना चाट, और जब वहां जाके कंटेनर खोलना गया तो 300 मीटर सिर्फ 2 आदमी बचे जो दुख की कहानी सुनाने के लिए बाकी रह गए। ये कनवी कहानी है कि एक औरत के जिस्म को जख्म लगा करके फूके कुत्तों के आगे छोड़ा गया और अमरीकी गुंडे उसके तरफने का तमाशा देखते थे कैसे लगाते थे। ये कहानी पुरानी नहीं हुई कि हमारे सरों से पाल नोचे गए और उन जख्मों में सदाब छिड़का गया और उनके तरफ से का तमाशा देखा गया। ये कुत्तों और बिल्लियों के फूक बनाने वाले मख्तार और अय्यार
इतने गंदे और इतने घिनौने और इतने सख्त और इतने सख्त दिन हैं, इन्हें इंसानों का तमाशा लगा के खुशी होती है। ये सब कुछ मुनाफिकत है। ये बिल्लियों और कुत्तों के जानवरों के हुकूक की तंजीमें बनाने वाले ये सब फकारी कहते हैं। इंसानों का बहता हुआ खून और अफगानिस्तान के पहाड़ खून से रंगे थे और इराक के अंदर जो कुछ हुआ मूसल की शाम कौन भूल सकता है, और इन जमलों को भूल सकता है जब बगदाद के अंदर लोगों ने अपने घरों के सेवा के अंदर कब्रें खोदी थी। हमें बड़े चरके लगे, हमें बड़े दुख पहुंचे, बड़ी अजियत नहीं, लेकिन ये वक्त भी हमने अपनी आंखों से देखा। और ये हमारी जिंदगी में लम्हे भी आए कि जिस तरह हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, वेबसाइट के ऊपर पेज डाला जाता है और पूरी दुनिया को दावत दी जाती है कि आओ तो हीरे रिसालत का मैच खेले, और 12,000 वक्त में वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये टूट बढ़ने का मौका है उम्मत मुस्लिमा के। हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि दो ही बातें, या गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा या आज के रसूल जिंदा है। धरती के ऊपर ये नहीं हो सकता कि दोनों एक खास जिंदा। हमारी जिंदगी तेज तरतीब क्यों नहीं हो जा रहा, हमारे शबो हो ख्याल मुरतब क्यों नहीं हो जा रहा, हमारी जिंदगी के तैवर जो है वो बदल क्यों नहीं जाते। ये दिन बदनसीब दिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन बदनसीब दिन हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से आए। ये बात ज़हन में रखें। हमने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर इंतहाई कमजोर अयाम भी देख, बिल्कुल जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, जब मिस्टर हेम्फर और नाफिस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े चलने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याजियों में लगे हुए, उन्हीं दिनों का वसीया पड़ा है। देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता सफी शहर और पुरकदे में बरहमन की पुख्ता जुद नारी भी देख। काफरों की मुस्लिम आईपी का भी नजदारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आदारी भी देख। चाक कर दी तुर्क नादारी खिलाफत की कबाब, साथ की मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। वो दिन भी हमने देख, ले गए तसनीस के फरजन दीरा से कली, हमने वो दिन भी देख। उसी कश्ती को है खौफ तलातब सब है मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं और ये हालात आए थे उम्मत मुस्लिमा के। हमने लुटते हुए कुंजलस की कहानियां भी पढ़ी। हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को पगड़ा डालते हुए देखा है। हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल करते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए, और ये 2-4 अशरों के अंदर जो हालात है वो इंतहाई बदतरीन। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर थी। सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म रिसालत पे बना। उस कमजोर हालात के अंदर जब के जीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहनकर हाथ में तलवार थाम के मैदान में आ जाता। इतने बदनसीब दिन थे उस वक्त, हम एटमी ताकत नहीं थे। लेकिन आज 57 इस्लामी ममालिक, और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले कोई निशान 56-57 इस्लामी मुल्कों ने ठपका एक 2 बयान भी दिया हुक्मरानों की जान। OIC एक गुस्ता घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं, मैंने कल भी किसी मौके पर कहा था कि जरदारी बेचारे को तो हम क्या करें, उसकी तो बात ही छोड़ें। लेकिन यूसुफ रजा की नानी को तो कह सकते हैं। कल कयामत के दिन आमना के नाद ने पूछ लिया, ये दादी मेरी तौहीन होती थी और तेरे हाथ में वजारत का कलम दाल था, तू एक हब का प्याज भी ना दे सका, तो गुंबद खजरा के मकीन के सामने क्या जवाब देगा। माँ फातिमा ने पूछ दिया, मेरे पापा की तौहीन हुई थी और तेरी जिंदगी बेतरतीब नहीं हुई थी, तो क्या जवाब देगा। शायद इन लोगों ने समझा है कि वाशिंगटन और व्हाइट हाउस की 3 है हुकूमत, लेकिन हुक्मरानों ने धोखा खाया है। ये तख्त और ताज हमें अमेरिका और यूरोप से नहीं मिले, ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नसीब हुए। ये पाकिस्तान बिलखुसूस हमें थाली में डालकर दे दिया, ये भीख मांगने से अमल किया। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, खून की बहती हुई थारे आज भी गर्म है वतन के लिए बनी। वो जब ये भूल सकते अब, जब मां की गोद से बच्चा छीना जाता और सिर का बात की नोक पे डराता और फिर पटक के पलट से मारता, बच्चे का पेट फट जाता, मां रोने की बजाय कहती पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, इसी तरह कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूल। ये पाकिस्तान हमने खून दे के दिया है, अपने वतन छोड़ के पाकिस्तान हासिल किया है। दुनिया के ऊपर नजरिया की बुनियाद पर बात से वजूद में आने वाला फुट क्या पाकिस्तान, इसका बियोग्राफिया बात में है, नजरिया पहले, नजरिया की बुनियाद पर यह मुल्क पास से वजूद में आया। इसके लिए अदालत माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां निछावर, सब नारी परचम पे कुर्बानियां पेश की गई।
पाक सर जमीन यूं ही शार बात नहीं हुई, बल्कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का खून है। कितनी औरतों का जो है वो खून बहा और कितनों ने अपनी आदम से हाथ धोए। तो ये मुल्क हमें यूं ही नहीं मिला, ये समझते हैं कि ये वाशिंगटन की देन है और एक अब का बयान देना जो है वो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये वतन हुजूर के गुलामों का वतन है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, बल्कि पूरी दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक आका की अताद। ये मक्के और मदीने का पैगाम है, ये वाशिंगटन और यूरोप का फैज नहीं है, ये आमना के नाल का पैज। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे अर्ज़ फहामा से, फूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा उमर 22 लाख मुरब्बा पीर की हुक्मरानी और कहा क्या हुआ? कहा मैं अपने बाप खत्ताब के ऊँट चलाया करता, इसी मैदान में मेरे बाप ने मुझे कहा 5 ऊँटों को लाइन में खड़ा, मैं आगे वाला सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा होता, मैं पीछे वाला सीधा करता तो आगे वाला टेढ़ा होता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे होकर ये 5 ऊँट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकते हो? तो इसी चटियल मैदान में मुझे मेरे बाप से मुझे मार पड़ी और आज 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरान शर्क से लेकर अरब तक सारे लोग फिदाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? मैं तो 5 ऊँट भी लाइन में खड़े नहीं कर सकता था और आज शर्क से अरब तक सारी दुनिया लाइन में खड़ी है। या था कि नारायण पे सदका नहीं है तो उम्मत मुस्लिमा को जो हुक्मरानी मिली है ये हुजूर के नारायण का सदका में। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो मिर्ज़इयों के भाई बनते थे, शर्म करो, हया करो, बेगैरत न बनो। मुझे एक दरवेश ने बताया कि फांसी का फंदा पूरा आ गया था, सिर्फ 2 नेकियां काम आ गई। एक तो जो एटमी धमाका किया था वो काम आ गया। आज भूल गया है उस कहानी को, उस वक्त फंदा बिल्कुल पूरा आ गया। ये मदीने ने बचाया है या मक्के ने बचाया? और आज जो कुत्ते मक्के और मदीने पे भौंकते थे आज उनको भाई कहा जा रहा है। ये 4 दिन का तख्त ताज है, 4 दिन की कहानी है। हम अगर सुल्तानी को कहते हैं और दूसरी तरफ गिलानी को कहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करें, हम मियां नवाज शरीफ को भी कहते हैं अपना किबला ठीक कर दे, अल्लाह से तौबा करें, वरना अल्लाह का क्या पड़ेगा, उसका गजब पड़ेगा। कौम ने तेरे से तवक्को वापस्ता किए हैं, लेकिन कौम तवक्को वापस्ता कर सकती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से कौम गद्दारी नहीं कर सकती। तुमने समझा कि जो मर्जी कह ले कौम सही हुई है। हमारे पास इस वक्त मुल्क में भी लीडर कोई, हम समझते हैं हमें मजबूरन जो है बहुत सारे लोगों का टिकाव से नहीं जाना हो गया और तू भूल गया कि शायद जो है कितना बड़ा लीडरशिप तो कोई नहीं है। कौम की मजबूरी है कि लोग छोटी बुराई को कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। कौम की तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश कर। और ये नहीं वो गजब किया और जुल्म किया मिर्ज़इयों को, क्या वो भाई कहा मिर्ज़ई खत्म नबूवत के बागी हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन है। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। जो बदबख्त ये जुमले कहें तो उसको भाई कहने वाला हमारा क्या लगता है? अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, वरना इतना बड़ा गुनाह किया है जो दुनिया भी बर्बाद कर दे, रात भी बर्बाद कर। ये तख्त व ताज के लिए ये लोग क्या क्या पापड़ दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। हद कर दी कलंदरे लाहौरी और दरवेश सियालकोटी तहलसूते मशरफ ने, नक्काते मगरब ने। इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या गौ और कलम तेरे। हम शख्सियत परस्त नहीं है, फितना है, मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। हम नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं है। गुलाम खाजा इनाम गेती नवाज के दर्दीनश मलूक थी आरामस, हम तो साका के गुलाम हैं। मेरे कारवा है मेरे इजाद अपना, इस नाम से बाकी है आराम जहां हमारे। इन लोगों को गलत फहमी होगी लोगों का वजूद देख करके, और जो मर्जी पके जा रहे हैं और समझते हैं ये कौम पे गैरत है। ये कौम पे गैरत नहीं है, हुजूर से वफा के रिश्ते को निभाना जानती। वो गोद अभी फाज नहीं हुई जिसने गाजी इल्मुद्दीन को जन्म दिया, वो गोद अभी फाज नहीं हुई जिसने अहमद चीमा को जन्म दिया। गलत फहमी हो गई और मगरब ने भी हुक्मरानों के रूप में मुसलमानों का चेहरा देखना शुरू कर दिया। हम सब कुछ कबूल कर सकते हैं, हर शय बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नाम मोहम्मद से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। मगरब ने अपने अंदाज में सोचा है, वो कहता है कि नबी भी तो एक इंसान ही होता है, लेकिन नहीं, हम
हर शय हर दुख कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब बाज में आए तो सब नबी के नाम पे वार के तब भी कहते हक अदा नहीं हुआ। बरेली से आज भी आवाज आ रही है, करूं तेरे नाम पे जान फिरना, ना एक जहां दो जहां से था, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहान। पीटीए का डायरेक्टर दलाल दे रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैंने उसी दिन गुजरावाला के रोड पे कहा था, मैं किस इमेज की बात करते हैं, गैंग रेप वाले इमेज की बात करते हो, जिस बच्चियों को उठा के ले जाए जाते हो उस इमेज की बात करते हो, जिस पे मछलियां मछली बना बनी हुई है उस इमेज की बात करते हो। कल लोग से एक दूसरे के बाल जो है वो तोड़ रही थी और एक दूसरे को टमाटर लगा रही थी असम्बली के अंदर, उस इमेज की बात करते हो। शाही किले के अंदर एक वजीर एक औरत से थप्पड़ खाता है, इससे गलत इमेज की बात करते हो। एक साली नस्ल शख्स का प्यारा फजा में फूकता है कि अभी जनाब का बिजनेस है नहीं, अभी नीचे नहीं प्यारा उतरेगा, इस इमेज की बात करते हो। तुम्हारे कमरों से टूटी हुई चूड़ियां और खाली शराब की बोतलें जब निकलती है और सभी को साफ करता है, तो इस इमेज की बात करते हो। हमारा इमेज मोहम्मद अरबी के तन से है, हमारा सब कुछ हुए हैं। लोग तो ऑक्सीजन से जीते हैं और हम सांस विश्व के रसूल से लेते, हुजूर के नाम से हम जीते हैं, हुजूर के नाम से मर। और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत चीजें हमने बर्दाश्त, बड़ी बहुत कुछ हमने बर्दाश्त, हमारे पास साथ इन 4 शोर में थोड़ा कुछ तो नहीं हुआ है। हमें उम्मे अहमद की चीखें आज भी याद है, हमें मूसल की बेटी की कहानी आज भी याद है, हमें बर्दाश्त की उन बच्चियों को जो आवाज कर रही आज भी याद है। हमें अपनी कहानी भूली नहीं है, लेकिन सब कुछ हम किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की तो ही बर्दाश्त नहीं करते। अगर इसको बर्दाश्त करते तो मेरे पन्ने जाते कुछ। जहां मैं इन हुक्मरानों को बेगैर कहता हूं, वहां मैं खिराज पेश करूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में। मैं कहता हूं ये है तख्त व ताज के मालिक। इन हुक्मरानों की कब्रों के निशान भी जमाने को याद नहीं रहे। वो एक बाहर घूमता फिरता है, बुलेट में आना नसीब नहीं है। आज वतन की हवाओं को तरसा है, आज इनका भी ये हो। और कितने साल गुजर गए, एक वो हुक्मरान से आज भी दिलों के तख्त पे बैठे हो। ये मौजूदा हुक्मरान, ये हमारे सरों के हुक्मरान तो बने हुए हैं, लेकिन हमारे दिल के तख्त पे नहीं बैठे हुए। हमारे दिल के तख्त पे बैठा है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा हुआ, हमारे दिल के तख्त में बैठा है तो नूरुद्दीन जंगी बैठा है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे हैं, मोहम्मद बिन कासिम बैठा हो। ये है हुजूर से वफा करने वाले। सुल्तान अय्यूबी की कहानी कितनी दिलावेज है, कितनी जुर्रत आमेज है और कितनी गैरत वाली कहानी है। इंग्लिस्तान के शहजादों ने, रेजिनाल्ड ने मुसलमान काफिले को कहा कि बुलाओ अपने नबी को जो तुम्हारी जान छुड़ाए। दरीजा ताहनी जब सुल्तान अय्यूबी तक खबर पहुंची तो मैंने कुतुब में पढ़ा कि उसकी आंखों से शरारे निकलते थे, वो उससे से ताक पीसता था, उसकी रगें फूल गई और उसने 3 मरतबा कसम खाई तो उतनी देर तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक उस सालिम को अपने हाथों से कत्ल नहीं करूं। और फिर पढ़े तारीख सुल्तान अय्यूबी, आज यूं ही उसके लिए दिल नहीं तड़प। सुल्तान अय्यूबी फिर 3.25 साल तक मुसलसल चारपाई पे अपनी करवट नहीं लगाई। ऐशो इशरत करने वाले हुक्मरान सुने, ये थे हुक्मरान, ये थे तख्त व ताज के मालिक। 3.25 साल तक उसने चारपाई पे अपनी करवट नहीं लगाई। जब नींद तंग करती थी, खैमे की चोक से टेक लगा के आंखों की आग निकाल लेता। वो जो खैमे के अंदर लकड़ी गड़ी हुई तो उसके साथ टेक लगा देता, आंखों की आग निकली फिर महाज। उसने वो बारूद वाली हांडियां तैयार की, बहुत कुछ किया उसने दिन रात। वापस आता तो नक्शे बनाता है, जाता है मैं हाथ पे डट जाता। 3 साल के बाद अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी। इंग्लिस्तान के शहजादे लाइन में खड़े गिरफ्तार हो। बादशाह ने शाह गामा के लिए कुर्सी पेश की। नाइट्स को पानी का आप बोरा कहा, जिसे हम कुर्सी देते हैं अमान देते, जिसे आप बोरा देते हैं पानी को से अमान देते। हम सफारसी आदाब जानते हैं, बादशाहों को कत्ल नहीं किया जाए, तुम्हें आजाद करते। लेकिन जब रेजिनाल्ड पे नजर पड़ी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आप पे से बाहर हो गए। वो उसे से ताक पीसता हुआ आगे बढ़ा और उसको गिरेबान से पकड़ के पटाखे जमीन से मारा और छाती पर बैठ के उसके बदन की पोठियां करते हुए कहा, ओ कुत्ते, तूने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को। मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है जो तेरी खबर लेगा और उसकी टिक्का बोटी करके रख दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कहानी भी आपने सुनी हो। हुजूर ख्वाब में मिले, कहा नूरुद्दीन दो कुत्ते मुझको तंग कर रहे हैं। सुल्तान उसी वक्त उठा, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए हुजूर के शहर नूर की तरफ चल पड़ा। 18-19 दिन के बाद वहां पहुंचता है। 40 लोगों को अपने हमारा लिए पीछे से खजाने और लोग जमा, कहा कि तुम मेरे पीछे आज। मदीने में गैर मामूली वाक़या हो, फिर सारे मदीने को बुलाया और उनको खाना खिलाया।
लेकिन जो दो शख्स दिखाए गए थे वो नजर नहीं आए। कहा कोई जैद मुझे क्या कहा, 2 सूफी दरवेश आदमी अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिन को रोजा रखते वो नहीं आए। कहा बुलाओ। बुलाया गया तो बादशाह ने पहचान लिया ये तो वही। कहा इधर क्या लेने आए हो? कहा अल्लाह अल्लाह करते। कहा चलो। उनके गुजरे में चला गया, देखा तो कालीन बिछा हुए, कोई आसार हुई है, कालीन उठाया नीचे पटा पड़ा हो, उठाया तो नीचे से सुरंग थी। वो हुजूर के जस्ते अत्तहर को निकालने की साजिश कर रहे, सारा दिन मिट्टी निकालते, रात को बकी के कब्रिस्तान में फेंका। और रिवायात में आता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव का अंगूठा बाहर आ गया कि हुजूर नूरुद्दीन को मिले, और उन्हें एक झटका लगा और ये डर के भाग आए। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुजूर के रोजा के चारों तरफ सीसा पिघला के जहां तक पानी है वहां तक डलवा दिया, और फिर उनको कत्ल करवाया और उनके टुकड़े करवाए। और फिर उसके बाद जो आगे लफ्ज है वो जज्बाती करने वाले हैं। सुल्तान फिर मदीने की गलियों में रोता फिरता था, वो रोता कहता था हुजूर ये मेरी नौकरी, करोड़ों इंसान बचते हैं, आपका शुक्रिया कि ये नौकरी आपने मुझे अता की, ये नौकरी आपने मुझे अता की। साहिब हर एक का मकसूद नहीं होता, हर एक का मकसूद नहीं है, ये किस्मत वालों को एजाज मिलता है। जब राजपाल ने रंगीला रसूल लिखी थी तो लाहौर में बड़े लोग थे और बड़ों की आरज़ुएं भी, बड़ों ने हमले भी किए। खुद गाजी इल्मुद्दीन का दोस्त अब्दुल रशीद उसके साथ 3 मरतबा टास्क दिए, वो कहता था मैं मारूंगा, गाजी इल्मुद्दीन कहता था इस कुत्ते को मैं मारूंगा। 3 मरतबा जो है वो कुल्ला फाल गाजी इल्मुद्दीन के नाम निकला, और फिर वो छुरी दे करके गया, और ये उसका मुकद्दर कि उसने राजपाल को कत्ल किया। उस दौर के अंदर जो मीडिया का दौर नहीं था, उस शख्स का जब जनाजा उठा तो 6 लाख लोग जनाजे में शामिल। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक तारीख साज जुमला कहा, आपने फरमाया लोगों मैंने बड़े बड़े बादशाहों की कहानियां पढ़ी, लेकिन मेरे दिल में कभी ये आरज़ू नहीं जागी कि फलां बादशाह मैं होता। मैंने बड़े बड़े शहनशाहों के किस्से पढ़े, बड़े बड़े पहलवानों के तस्करे सुने, मेरे दिल में ये जज्बा नहीं जागा फलां पहलवान मैं होता। फिर कहा मैंने बड़े बड़े वलियों का तस्करा पढ़ा है, मेरे दिल में ये उमंग भी नहीं जागी कि फलां वली भी मैं होता। लेकिन जब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा लोगों के कंधों मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल में ये जज्बा अंगड़ाइयां ले रहा था, काश आज इस चारपाई पे मैं होता। मैंने खुद इन आंखों के साथ गादी आमर चीमा की कब्र की पैंती की जानब एक सैयद ज़ादे को रोते हुए देख, जो रो रो के कह रहा था रब्बा मैं ये नहीं कहता मैंने आमर चीमा बना दे, मैं तो ये कहना है कदमा दी खाक ही बना दे। ये बुलंद नसीब है जिसको मिले, ये हमने आरज़ू करनी है, ये हमने तमन्ना करनी है। आज लब्बैक का या रसूलल्लाह का रस्म के तौर पे नहीं, मैं तो अपनी दुआओं में मरकजी दुआ यही रखी हुई है कि बड़ी तकरीरें करनी है, कहीं आला ताली नफज ही न रह जाए। एक साल आया था 2007 का, मैंने 1200 दूसरे कुरान एक साल में दिए, अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है। और ये नहीं है कि सुनने वाले नहीं मिलते, या हर माह इतने लोग जमा होते हैं, दस्ते में चले जाएं, सियालकोट में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, जिस शहर में जाएं हजारों लोग, तकरीर की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी नहीं, मोहब्बतों की फरावानी है। लेकिन डरता हूं कहीं लफ्ज़ ही लफ्ज़ न रह जाए, मालिक कमजोर हूं, इतनी ताकत तो नहीं, अंदर बुज़दिलियां और कमजोरियां तो हैं, लेकिन अल्लाह इस कमजोर को ये ताकत दे के किसी गुस्ताख का कलेजा चीर के रख दे, इतनी कुव्वत है। ये आरज़ू करके आपने भी आज उठना है और इस अज़म के साथ उठना है, हो सकता है मुकद्दर जाग पड़े। वो देखो आमिर चीमा को कत्ल करना थोड़े गया था, वो तो टेक्सटाइल की डिग्री लेने गया था, लेकिन वापसी पर जो डिग्री वो लेकर गया, हजारों डिग्रियों से एक डिग्री पे कुर्बान। ये मुकद्दर की कहानी होती है, किसी को उम्र गुजर जाती है, किसी को रास्ते में चलते चलते सौदा मिल जाता है। ये किस्मत की कहानी है। आरज़ू तो पैदा करें दिल में, तमन्ना तो करें दिल, और ये आरज़ू ख्वाहिश रखें कि हम गुस्ताखान रसूल के कलेजे को चीर के रख दें और उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दें। आका आपकी नामूस पे जो भौंकेगा, आपकी जो तौहीन करेगा, हम उसके टुकड़े करके रख देंगे। हजार कमजोरियों और कोताहियों के बावजूद हम बेगैरत नहीं है, नाम मोहम्मद पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, और सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी हक अदा नहीं हो पाता। वो इतनी ऊंची जात है। असल ये हमारा इम्तिहान, मैंने उन दिनों के अंदर भी 2008 में भी कहा था, ये हमारा इम्तिहान है। वरना अल्लाह ताला जल्ला शानहू मच्छरों से नहीं नमरूद का फखर तोड़ ले, वो अबाबीलों से भी हाथी बनवा लेता है। महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन को करके तो देखे, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है, हमें अल्लाह देखना चाहता है, हमारी आजमाइश है, और हमने देखना है कि हम इस आजमाइश में पूरे निकलते हैं कि नहीं। सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी हमारे मरानों की थी, चूंकि कुव्वत हातमा के वो मालिक, लेकिन वो तो बेगैरती की चादर ओढ़ के सोए हुए और ख्वाब खरगोश में हैं, जो मर्जी होता रहे, जो है वो कोई तवक्को नहीं है उनसे कि वोट खड़े। ये तो सोरे इसराफील से जागेंगे, उससे कबल तो जागने के नहीं। दूसरी जिम्मेदारी उन ममालिक में रहने वाले मुसलमानों कि वो उन गिरोबानों से पकड़े और उनको कैच करके उनको जो है उनके टुकड़े टुकड़े करें, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है।
کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ واضح میں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو. کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب القرآن میں اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکتہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگا. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 500 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی سے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسرہ گفت کہ جامع پیغمبر ریب نات بود. کسی نے کہا حضور کا لباس مینا تو چینا تھا. 500 علماء نے کہا اس کی گردن اتار, اس نے حضور کے لباس کو مینا کہا. اعظم چشتی کہتے ہیں یار نو میلی یک نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو گئے. اتنی حساس اتنی نازک بارگاہ تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے. اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیپری کردار تک نہیں پہنچانے کے. تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہ احتجاج, یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ واضح میں رکھیں. اس سے مرد کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں, تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مرد تو خوش ہوتا ہے, ہم نے چٹکی مری اور دیکھو یہ کیا تکلیف میں. لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنی ان جذبوں کو بیدار رکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہو جائے. ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو اتنا نہیں کر سکتا کہ 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو, تو وہ پھر کس طرح اس کے رسول کا دعویٰ کر سکتے؟ یہ لوگ سرپرست ہیں, پیسے کے بندے ہیں. اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے, اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا. تو ہم ان کی چیزیں, ان کی مصنوعات خریدتے ہیں. بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہے جو کہ اسرائیل کو پیسے دیتی ہے, ان کو فنڈنگ کرتی, اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کر دی ہے کہ مرد کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقصود بائیکاٹ کریں. اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے, ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں, کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا. وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہو. انسان ذرا سوچ تو صحیح, غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے, وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے اوپر بنائے ہوئے ہو, ان کا لباس ان کی وضاحت بنائے ہوئے ہو. محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سن سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ. وہ محمد کی زیارت محمد کے رنگ وچ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ بھی کرتت وجود عشق بھی گوئے کہ محکوم غیر سینہ تو از غتا مانند تے تالداری از محمد رنگو ہو بر زبان خود میں آلہ نام ہو. اور میرے حضور فرماتے ہیں اب یاری لا تم پاک نبی کلائن, اس رنگ میں لگے جاؤ. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تم میں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے. کہا نہیں, تمہاری وضاحت شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے. تم دور سے آ رہے ہو, لوگ دور سے پہچان کے کریں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے.